کے اظہار اور خود نثاری کے اعمال سے پاشکا کے وعدوں کو منانے کی تیاری کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ دنیا بھر کے تمام مسیحوں کے ساتھ مل کر ہم یہ پاک عبادت شروع کرتے ہیں۔ مسیح خداوند کے جشن کے ساتھ اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہونا تاکہ وہ دکھ اٹھا کر، مر کر اور جی اٹھ کر ہماری نجات کا کام پورا کرے۔ چاہیے کہ ہم عقیدت کے ساتھ اس واقعے کو یاد کریں اور زندہ ایمان سے اپنے خداوند یسوع مسیح کے ہمراہ چلیں اور صلیبی دکھوں میں اس کا ساتھ دے کر ہم اس کے جی اٹھنے اور اس کی نئی زندگی میں شریک ہوں۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تو ان ٹہنیوں کو برکت دے اور ان کو پاک کر۔ ہم خوشی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ اور بادشاہ ہے۔ بخش دے کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کریں اور ایک دن نئے اور ابدی بیت المقدس کی خوشیوں میں شریک ہوں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔
رضوان اینو ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ رضوان باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئے ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی پاک عبادت میں شامل ہو سکے۔ میں قادر مطلق خدا قادر مطلق خدا ہم پر رحم کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا مانگے۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تو نے بنی نوع انسان کو اپنا پیارا بیٹا بخشا تاکہ وہ ہمیں بچائے اور ہمارے لیے انکساری اور حلیمی کا شاندار نمونہ ہو۔ اس نے انسان بن کر اور صلیب پر اپنی جان دے کر تیری مرضی پوری کی۔ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اس کی پیروی کر کے تیرے سچے گواہ ٹھہرے اور اس کی قیامت میں شریک ہونے کے لائق ٹھہرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ میں نے زمین سے اپنا منہ نہیں چھپایا، میں جانتا ہوں کہ میں شرمندہ نہ ہوں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی شاید نبی کا صحیفہ 4:4 مالک خداوند نے مجھ کو شگرد کی زبان تاکہ میں تھکے ماندوں کے لیے وقت پر کلام کر سکوں۔ وہ صبح مجھے جگاتا ہے تاکہ میں شگرد کی مانند سنوں۔ مالک خداوند جی نے میرا کان کھولا تو میں سرکش نہ ہو اور پیچھے کو نہ روکا۔ میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں اور گالیں نوچنے والوں کو دے دی۔ میں نے توہین اور جھوٹ سے اپنا منہ نہیں چھپایا، لیکن مالک خداوند میرا مددگار، اسی لیے میں شرمندہ نہ ہوں۔ اسی لیے میں نے اپنا چہرہ چکماک کی طرح کیا اور یہ جانا کہ میں رسوا ہوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور اس میں جانا۔
Askerot Mosiriye Kudi. खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का तस्करा मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसके 26वें बाब में से चलो। शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फसा करूँगा। कर सकता है दूसरे में से आपका नाम दूसरा नहीं अकेला नाम देता है दूसरा दूसरा बात हाँ जी ये मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत गंभीर हुए और हर एक इससे कहने लगा जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्न इंसान तो जैसा उसके हक में है लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से वो पकड़ाया जाए। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसके
ने खुद ही कह दिया। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इस में से पियो, क्योंकि नए अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि ताक के शीरे को फिर ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पी लूँ। और वो गीत गाकर थोड़े दर्शन हो गए। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब इसी रात मेरे सबब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गले की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील में जाऊंगा। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, अगर ये सब तेरे सब से ठोकर खाएं, मगर मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इसी रात मुर्ग के भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज़ ना करूंगा। और सब शरीरों ने भी उसी तरह कहा। तब यीशु अपने शरीरों के साथ गethsemane नाम के मुकाम में आया और उनसे कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। पतरस और लकड़ी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और सब बेकरार होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरी जान बस बहद मौत गमगीन है और तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल लिया और दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ताहम न जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। तब से यीशु के पास आया और उन्हें सोते पाया। पतरस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर उसने दोबारा जाकर दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये मुझसे नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उन्हें छोड़कर पी गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब फिर यीशु के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो वो घड़ी आ पहुंची है कि इब्न इंसान गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चले, देखो मेरे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह रहा था कि देखो, यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके हमरा एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए सरदार कायनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से था। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये कहकर निशान दिया था कि जिसे मैं सुनूं वही है, उसे पकड़ लेना। और वही यीशु के पास आकर उसने कहा, ऐ नबी इस्लाम, और उसने उसका मुकर्रर था। उसने उससे कहा, ऐ मियाँ, तू कहाँ तक पहुँचा? इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार कायन की गुलाम पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को उसकी जगह में रख, क्योंकि वो सब जो तलवार खींचते हैं तलवार से ही हलाक होंगे। क्या तेरा ये ख्याल है कि मैं अपने बाप की मिन्नत नहीं कर सकता कि वो अपने फरिश्तों की 12 फौजों से ज़्यादा इसी दम मुझे दे दे? मगर नविश्ते का यूं ही होना ज़रूर है, कैसे पूरे होंगे? उसी घड़ी यीशु ने हजूम से कहा, कि तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझसे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था
اور تم نے مجھے نہ پکڑا، لیکن یہ سب اس لیے ہوا تاکہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شہید اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر یسوع کے پکڑنے والا اسے قیافہ قائد اعظم کے پاس لے گئے، جہاں بکیا اور بکریاں جمع تھی، اور پترس دور دور اس کے پیچھے پیچھے قائد اعظم کے محل تک گیا اور اندر جا کر حاکموں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ تب قائد اعظم اور سب اہل عدالت عالیہ یسوع پر جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے قتل کرائیں، مگر نہ پائے، حالانکہ بہت سے جھوٹے گواہ حاضر ہوئے۔ آخرکار دو آئے اور بولے، اس نے کہا کہ میں خدا کی حکم کو ڈال سکتا ہوں اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ تب قائد اعظم نے اٹھ کر اس سے کہا، کیا تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ یہ کیا ہے جس کی تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش رہا۔ تب قائد اعظم نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو المسیح ہے خدا کا بیٹا تو ہم کو تباہ کر دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود ہی کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے تم ابن انسان کو القادر کے دائیں بیٹھا اور آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھو گے۔ اس پر قائد اعظم نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے۔ اس نے کفر پکڑا ہے، اب ہمیں گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے۔ تب انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کو منہ سے مارے، اور دوسروں نے تماچے مار کر کہا، اے مسیح نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا۔ جب پترس باغی خانے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک رومی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع جلیلی کے ساتھ تھا۔ اس نے سب کے سامنے انکار کر کے کہا، میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے۔ جب وہ دروازے کی طرف باہر جانے لگا تو دوسرے نے اسے دیکھ کر کہا، ان سے جو وہاں سے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر سے انکار کیا۔ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو وہاں کھڑے تھے پاس آ کر پترس سے کہا، تو بھی ان میں سے ہے کیونکہ تیری بولی ایجاد کرتی ہے۔ اس پر وہ لعنت کر کے قسم کھانے لگا اور کہا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ اور بھی الفور مجھ نے باندھ دی۔ تب پترس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مجھ کے باندھنے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر دار رویا۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاملوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے قتل کریں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطس حاکم کے حوالے کیا۔ تب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا ہے تو پچھتایا، اور وہ 30 مسکال سردار کاملوں اور بزرگوں کے پاس واپس لایا اور کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے اتروایا۔ وہ بولے، ہمیں کیا تو جانے۔ تب وہ مسکال ہیکل میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی، مگر سردار کاملوں نے وہ مسکال لے کر کہا، ان کو خزانے میں ڈالنا روا نہیں کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ تب انہوں نے مشورہ کر کے ان سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے آج تک وہ کھیت خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ تب وہ پورا ہوا جو ارمیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ انہوں نے وہ 30 مسکال لیے، یعنی وہ لگان جو اس پر لگایا گیا، جنہوں نے لگایا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان کو کمہار کے کھیت کے واسطے دیا جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ اور یسوع حاکم کے روبرو کھڑا تھا، اور حاکم نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو خود کہتا ہے۔ اور جب سردار کامل اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، کیا تو نہیں سنتا کہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ مگر اس نے ان کو کسی ایک بات کا
रास्तबाज से कुछ काम न रहा, क्योंकि मैंने आज खुदा ने इसके जवाब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार कानूनों और बुजुर्गों ने हजूम को उभारा कि बराबा को मांगे और यीशु को हलाक कराएं। और हाकिम ने उनसे खिताब करके कहा, तुम इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है मैं करूं। सब ने कहा। इसे सलीब दे। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बदी की है? मगर वो और भी चिल्लाए। इसे सलीब दे। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता मगर हंगामा ज्यादा होता जाता है, तो पानी लेकर अवाम के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से पाक हूँ, तुम जानो। सब लोग बोल उठे और कहा, उसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। इस पर पिलातुस ने बराबा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर तमाम घरों उसके गिर्द जमा किया और उसके कपड़े उतार कर उसे कमीजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बुलाकर उसके सर पर रखा और सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उस पर ठट्ठा मार कर कहा, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब वो उस पर ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उतार कर फिर उसी के कपड़े उनके पहनाए और मसलूब करने को ले चले। जब वो बाहर आए तो उन्होंने शमौन नामी एक गिरवानी आदमी को पाकर बेगार में पकड़ा कि उसकी शरीर उठा ले। और जब उस मुकाम पर पहुंचे जो जलता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, तो उन्होंने उसे बस पीली हुई मैं पीने को दी और उससे चखकर पीना न चाहिए। और जब उन्होंने उसे मजलूब किया तो उसके कपड़ों को पूरा डालकर बांट दिया ताकि जो नबी की मान पर कहा गया था वो पूरा हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ते पर पूरा डाला। और वो वहाँ बैठकर उसकी निगरानी करने लगे और उसका इल्जाम मिलकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि यीशु है यहूदियों का बादशाह। तब उसके साथ दो डाकू भी मसलूब हुए, एक दाएं और एक बाएं। और आज चलने वाले जो पास से गुजरते थे वो सर हिलाकर उसको मलामत करते और कहते थे, वाह, तू जो हैकल को ढाता और 3 दिन में बनाता है, अपने आप को बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार कानून ने भी माओवादियों और बुजुर्गों की ठट्ठा मार कर कहा, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर ये इस्राएल का बादशाह है तो आप सलीब पर से उतर आए और हम इस पर ईमान लाएंगे। उसका तवक्कुल खुदा पर है। अगर वो उसको चाहता है तो आप उसे बचाए, क्योंकि इसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। इसी तरह की बातों से वो डाकू जो उसके साथ मसलूब हुए उसे मलामत करते थे। अब 6वीं घड़ी से 9वीं घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। 9वीं घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शब्तकानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो वहाँ खड़े थे उनमें से बाद में सुनकर कहा, और यास को बुलाता है। और उनमें से एक ने दौड़कर अर्पण किया और सिरका से भरा और सरकटे पर रखकर उसे पीने को दिया। मगर दूसरों ने कहा, ठहर जा, देखिए आया यास उसे बचाने आता है। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दी। मेहरबानी जो
वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर अपने पाक हफ्ते का आगाज़ करते हैं। खजूरों का ये एतवार मसीह यीशु की अज़ियतों के एतवार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस त्यौहार में हम अपने पाक हफ्ते का आगाज़ करते हैं। हमने बड़ी खुशी के साथ जुलूस की सूरत में गीत गाते, नारे लगाते खुदावंद के पाक घर में आए हैं। इस एतवार में दो किस्म की इंसानी कैफियत या इंसानी जज्बात नज़र आते हैं, खुशी और गम के। खुशी कि आज खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में बादशाह के तौर पर दाखिल होता है और यरूशलेम के लोग बड़ी खुशी के साथ, शादमानी के साथ यीशु मसीह को खजूरों की डालियां लहराते हुए अपना बादशाह तस्लीम करते हुए अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं। इसलिए आज हम भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम करते हुए पूरे जोश के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं चाहूँगा हम सब खड़े होंगे, सब खड़े हो जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, मैं चाहूँगा कि हम सब आज यरूशलेम के लोगों की तरह मसीह यीशु की मोहब्बत में डूब जाएं। मसीह यीशु की मोहब्बत में डूबते हुए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और मसीह यीशु को अपना बादशाह तस्लीम करें। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, गरीबों का बादशाह, हम सब का बादशाह, गुनाहगारों का बादशाह, बे औलादों का बादशाह, मेरा और आपका बादशाह, हम सब का बादशाह, दाऊद के बेटे को, दाऊद के बेटे को, दाऊद के बेटे को तशरीफ रखते हैं। जड़ी इबादत है ना, ये बड़ी जोश की इबादत है। तो कोशिश करांगे जोश फरोश होश के नाल यीशु नूं खुशामदीद करिए। बादशाहों का बादशाह, यस बादशाहों का बादशाह, दाऊद के बेटे को, दाऊद के बेटे को मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम खजूरों के एतवार से अपने पाक हफ्ते का आगाज करते हैं। इस पाक हफ्ते को क्यों इतनी अकीदत कलीसिया देती है? क्योंकि इस दौरान हम एक रूहानी सफर का आगाज करते हैं। हम यीशु का खजूरों के एतवार में पुरजोश इस्तकबाल करते हैं और बाकी पूरा हफ्ता यीशु के दुखों, उसकी मौत, उसके जलाली जिंदा होने को याद करते हैं। इसलिए ये हफ्ता कलीसिया हमें बताती है, सिखाती है, हमारे लिए साल के तमाम हफ्तों से पाक और पवित्र हफ्ता है। क्योंकि इस
हफ्ते के आगाज में ही आज हम होशाना के नारे बुलंद करते हैं, उन लोगों की तरह जो यरूशलेम में होशाना का नारा लगाकर यीशु को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन उनकी वो नारे होशाना का नारा इसे सलीब दो में तब्दील हो जाता है। मेरा और आपका ईमान मुझे क्या सिखाता है? अजीज मोमिनीन, होशाना का नारा दर हकीकत फतह और सलामती का नारा है। ये नारा आसमान तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि लफ्ज होशाना ये अब्रानी जुबान का लफ्ज है। अब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ऐ खुदावन मुझे बचा, ऐ खुदावन मुझे बचा। ये नारा आज से 2025 साल पहले यरूशलेम के लोगों ने लगाया और यही नारा आज मैं और आप बुलंद करते हैं और आसमान तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं, ऐ खुदावन हमें बचा। किस चीज से? गुनाह से, नफरत से, बुरे इरादों से, बुरे कामों से, बुरे ख्यालों से। ऐ खुदावन मुझे बचा। अजीज मोमिनीन, ये नारा हमें एक गहरे रूहानी खुशी अता करता है जो हमें यीशु के यरूशलेम में दाखिले की तरफ लेके जाता है कि लोग टहनियाँ लहराते हुए यीशु को अपने दरमियान खुशामदीद करते हैं। और आज हमने भी टहनियाँ लहराते हुए, गीत गाते हुए यीशु को अपने दरमियान खुशामदीद कहा है। जिस तरह वो ये नारा बुलंद करते थे, होशाना इब्ने दाऊद, ऐ दाऊद के बेटे हमें बचा। वो याद करते हैं दाऊद की बादशाहत को, क्योंकि बनी इस्राएल कौम में जितने भी बादशाह आए, दाऊद बादशाह का दौर बनी इस्राएल कौम की जिंदगी में सबसे सुनहरी दौर रहा है। इसलिए ये यहूदियों का ईमान था कि जब अल मसीह आएगा तो वो दाऊद की तरह उनकी रहनुमाई करेगा, दाऊद की तरह अजीमुल शान बादशाह होगा, दाऊद की तरह खुदा का चुनीदा होगा, खुदा का मकबूल नजर होगा। इसलिए वो ये नारा बुलंद करते हैं, होशाना इब्ने दाऊद। वो यीशु को बादशाह के तौर पर कबूल करते हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि ये इब्ने दाऊद आसमानी बादशाहत का बादशाह है। इसकी बादशाहत रूहानी है, इसकी बादशाहत जिस्मानी नहीं। ये वो बादशाह है जो दिलों पे हुकूमत करता है, ना कि तख्तों पर। ये वो बादशाह है जो दिलों को बदल देता है, जिंदगियों को बदल देता है और इंसान को उसके हकीकी खालिक खुदा से मिला देता है। ये वो बादशाह है जो हलीम बादशाह है। ये वो बादशाह नहीं जो घोड़ों पर या शाही जो रथों पर सवार होकर अपनी अवाम पर, अपने लोगों पर हुकूमत करे, बल्कि ये वो बादशाह है जो गधे के बच्चे पर सवार होकर आता है और अपने लोगों की खुद खिदमत करता है। ये वो बादशाह है जो अपने लोगों पर जुल्म करने की बजाय उनका जुल्म बर्दाश्त करता है। ये वो बादशाह है जो
अपनी जान कुर्बान करके अपने लोगों को सलामती और बरकत बख्शता है। ये वो बादशाह है जो मौत पर गालिब आकर हम सबको मौत पर फतह याबी अता करता है। लेकिन बनी इस्राएल कौम इस बादशाह को जानने में, समझने में थोड़े कासर रहते हैं। इसलिए आज की पहली तिलावत मेरी और आपकी रहनुमाई करती है, सिखाती है। इशाया नबी के सहीफे से दुखी खादम का नगमा हमारे सामने पेश किया जाता है। यीशु मसीह उस दुखी खादम पर के किरदार पर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरते हैं। आज इशाया नबी की ये दुखी खादम के नगमे की पेशन गोई यीशु मसीह में तकमील को पहुंचती है। यीशु मसीह वो दुखी खादम था जिसने अपनी पीठ मारने वालों को दे दी ताकि वो जुल्म बर्दाश्त कर ले, वो कुर्बानी दे के मुझे और आपको आज़ादी और रिहाई बख्शता है। मसीह में मेरे अजीजों, आज की दूसरी तिलावत में भी हम देखते हैं पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि ये वो बादशाह है जिसने अपने आप को खाली कर दिया, मौत तक वफादार रहा। वो खुदा था, फिर भी खुदा की जात में बराबर होना गनीमत ना जाना, इंसान की जात इख्तियार की और मौत बल्कि सलीबी मौत तक वफादार रहा। ये वो बादशाह है जो वफादार है अपनी मौत तक। इसलिए मेरे अजीजों, ये वो बादशाह है जो मुझे और आपको ताकत की बादशाहत नहीं बल्कि हलीमी की बादशाहत दिखाता है। यीशु की बादशाहत ज़मीनी बादशाहत नहीं थी बल्कि हमेशा की बादशाहत थी। इसलिए आज ये होशाना का नारा मुझे और आपको ये याद दिलाता है और सिखाता है कि हमने भी इस नारे में यीशु की अलूहियत को पहचानना है। अगर हम ये बात का इकरार करते हैं, ऐ खुदावंद मुझे बचा, तो हमने अपने ईमान में भी मजबूत रहना है कि यीशु ही वो वाहिद हस्ती है जिसके वसीला से मैं और आप हकीकी नजात याफ्ता होते हैं, हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं। हमने अपने ईमान में कमजोर नहीं पड़ना। हमने भी उन लोगों की तरह ये नहीं कि आज होशाना और कल सलीब दो, ऐसे किरदार से किनारा कशी करनी है, दूर होना है, अपने ईमान में मजबूत होना है, ताकि हम जब बुलंद आवाज से पुकारें कि होशाना इब्ने दाऊद होशाना, तो ये मेरी और आपकी दिल की आवाज हो। ये सिर्फ महज लफ्ज ना रह जाए बल्कि हमारे दिल की फरियाद हो जो कि दुआ बन के निकले और मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी के पाकीज़गी दिलाए। इसलिए मेरे अजीजों, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 571 में जो लिखा है कि मसीह यीशु ने मेरी निजात के लिए, यानी हमारी निजात के लिए अपनी मर्जी से दुख सलीबी मौत को कबूल किया ताकि हम खुदा के साथ जुड़ जाएं। मुकद्दस अगस्तिन फरमाते हैं कि यीशु मसीह
खुदा का बेटा है जो बेगुनाह था, लेकिन हम सब गुनाहगार हैं और यीशु के वसीला से हम भी गुनाहों से पाक होकर यीशु जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं। यीशु ने अपनी मौत के वसीला से दुनिया को खलासी और रिहाई बख्शी है और माफ़ी बख्शी है। इसलिए ये मोहब्बत और रहम का सबसे बड़ा सबूत है। और पोप फ्रांसिस हमें याद दिलाते हैं कि मसीह यीशु की सलीब उम्मीद का निशान है, जो हमें हमारे दुखों, मुसीबतों, परेशानियों और कमज़ोरियों में सहारा देती है और ईमान में मजबूत होना सिखाती है। इसलिए आज का लुतूरियाई कलाम हमें हमारे ईमान का मरकज़ समझा देता है। ये पाक हफ्ता हमारे ईमान का मरकज़ है। यीशु का दुख उठाना, मसलूब होना और उसका जी उठना। लेकिन ये ईमान का मरकज़ जो आज हमने होशाना की सूरत में नारा बुलंद किया है, ये होशाना का नारा हमसे कुछ तवक्को करता है। तवक्को किस चीज़ की? होशाना मुझसे, होशाना का नारा मुझसे और आपसे ये सवाल करता है कि क्या हम वाकई ही खुदा से निजात मांगते हैं? क्या हम यीशु को वाकई हकीकी बादशाह तस्लीम करते हैं? क्या हम उसकी मर्जी को कबूल करते हैं? क्या हम उसकी पाक कुर्बानी में शामिल होकर पाकीज़गी में बढ़ने के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार करते हैं? होशाना का नारा मुझे और आपको दावत देता है कि हम अपने दिलों को खोलें, अपने दिलों को पाक करें, अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करें और खुदा की रहमत पर यकीन करें। आए आज जो हमने होशाना का नारा बुलंद किया है, ये नारा सिर्फ ज़ुबान तक ना रहे, बल्कि ये हमारे दिल की आवाज़ बन जाए। हम कहें होशाना की तरह। होशाना का मतलब क्या है? ऐ खुदा हमें बचा। ये जो आवाज़ हमने बुलंद की है, ऐ खुदा हमें बचा, आज ये हमारी दुआ बनती है कि ऐ खुदा हमें हमारे गुनाहों से बचा। ऐ खुदा मुझे मेरे गुरूर से बचा। ऐ खुदा मुझे मेरे तमाम खौफ से बचा, मुझे तमाम बीमारियों से बचा, तमाम कमज़ोरियों से बचा, तमाम शैतानी इरादों से बचा। मुझे हिम्मत दे ताकि मैं यीशु के साथ चलूं। ये पाक हफ्ते में मैं यीशु के उन दुखों का तजर्बा करूं, उसकी सलीबी मौत का तजर्बा करूं, ताकि हकीकी तौर पर उसके जलाली जी उठने का तजर्बा कर सकूं। आए तो यरूशलेम की गलियों से निकले और खुशी से उस गतसमनी बाग की तरफ चले, दुख की तरफ चले, सलीब तक चले, क्योंकि सलीब हमें क़यामत तक ले जाती है। क़यामत यीशु का जी उठना, उसका जलाल है। तो मेरी दुआ है कि आज ये होशाना का नारा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम सब की दुआ बने और हम सब की ये दुआ होते हुए हमारे ख़ानदानों के लिए ये वाकई ही नजात का नारा हो और हम सब इस पाक हफ्ते में यीशु की बरकत और फ़ज़ाइल हासिल करते जाएं, मसीह खुदावंद के वसीला से। रसूलों का खुदा मैं
खुदा हमारी पनाह और ताकत के सरचश्मे जो दुआएं इल्तिजाएं तेरे बच्चों ने तेरे हुजूर पेश की हैं, जो उनके दिलों में है, तूने भी सुन और कबूल कर, बख्श दे इनका असलम तक पहुँचे, मसीह खुदा उनके वसीला से। तशरीफ रखिए, लजाने का गीत गाया। ताकत है ना। जो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा के हुजूर में मकबूल हो। ऐ मेहरबान खुदा, बख्श दे कि तेरे बेटे यीशु मसीह की अज़ियत और मौत हमें तेरे मकबूल नज़र कर दे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी नजात दहिंदा की कामिल कुर्बानी हमें तेरे रहम और मोहब्बत के लायक बनाएगी। अपने करम से हमें ये तौफीक अता कर, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो।
खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। वो हम गुनहगारों के लिए कफारा देकर सलीबी मौत सहने पर आमादा हुआ। उसने मरकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला और जी उठकर हमें खुदा के साथ मिलाया। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। ऐ मेहरबान खुदा, तू कदूस है, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप लियो चौधरी, हमारे बिशप खालिद रहमत और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरियम, वली यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदरम अपने खुदा बाप को क्योंकि कुछ की वहदानियत में काबिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदावंद ने सिखाई है। तेरे बादशाही है, तेरे मशीयत से आसमान पर भी होती है, ज़मीन पर भी। हमारा रोज़ की रोटी आज हमें और इस वक्त में कर्जदार को बख्शते हैं, कोई हमारे कर्ज में बख्श, मैं उस बारिश ना पर मिली और तेरा सब चला। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं
हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। और जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करें। ऐ खुदा के बंदे, जहान के गुनाह को उठाने जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बंदे, जहान के गुनाह को उठाने जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बंदे, जहान के गुनाह को उठाने जाता है, हमें सलामती इनायत कर। खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है वो सब जो इस पाक मरने की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। मसीह का बदन, मसीह का बदन, मसीह का बदन, मसीह का बदन बच्चों को नहीं देते, ठीक है? मसीह का बदन, मसीह का बदन, मसीह का बदन, का बदन खराब नहीं हुआ? कितने की तरह से? कितने की तरह से? कितने की तरह से? कितने की तरह से? यार वो तरीका नहीं था आमीन का ईद है। इसी का बदन, इसी का बदन, इसी का बदन, इसी का बदन,
हाथ उठे रखिएगा बाजी, आमीन नहीं कहिए। इसी का मतलब अतराब नहीं आया जाना, इसी का मतलब, 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 आमीन कही जाए। इसी का मतलब, इसी का मतलब, इसी का मतलब, बपतिस्मा नहीं मिलती, इसके लिए इतराफ करना पड़ता है, वो आप इतराफ करें। इसी का मतलब, 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 बपतिस्मा ही हुआ ना, इतराफ नहीं ना हुआ, किसने किया था? आमीन बोलते हैं, उसी का वजन, आमीन बोलते हैं, आपने किया ही नहीं है, उसी का वजन, 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 इतनी बड़ी
زندگی جاری نسی رات رخ آ گیا وہ عبادت کا عروج جڑا ہے ہوندا ہے تاکہ جیوتے مسیح کا جشن جڑا ہے وہ منا سکے اس طرح لائٹ کی عبادت جڑی ہے عوام کی خاطر 8:30 بجے رکھی گئی ہے تاکہ لیٹ قوم کو اسی بیگا باغ کرایا کہا ان کی عادت ہے ٹھیک ہے 8:30 بجے رکھی گئی ہے اپنے نال گئے مہرتیاں نہ لے کے تاکہ سکون جا زندگی کو دور کرتا ہے دنیا کو دور کرتا ہے انہیں روشنی جڑی اپنے خاندان کے اندر جڑا ہے اپنی زندگی کے اندر لے سکتے جاکر یہ سب کا شکریہ میرے آج کی پاک مبارک آئے خدا کا اپنے برکار عالم معمول کرے ہم دعا مانگے۔ اے مہربان خدا، ہم اس پاک عبادت میں شریک ہو کر عاجزی کے ساتھ تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ تیرے بیٹے کی موت ہماری امید اور ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ بخش دے اس کا جی اٹھنا ہمارے لیے ثابت قدمی کا باعث ہو اور ہمیں ہمیشہ کی نجات دلائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہوتی رہے۔ عبادت ہو چکی، خداوند کی سلامتی میں رہیں۔